Hello student, how are you? I hope so that everybody is fine at your home. I am Rajendra Simori from Gnan Manjari Vidyapith Moa. Today I am going on to the mathematics subject, unit number 2, part number 2, probability. Now in this probability, in the first part of the probability, we have to conclude about the complementary event, and I hope so that everyone has very much cleared about all the keynotes that is given into the PDF, and number of students also completed their work whatever the mention into the keynotes. But today we are going on to the another fewer basic points into the probability. I am going to the thoroughly with the textbook, so you parallelly you also refer the textbook, that is also be important for you. One more thing, once we are going on to the probability, that time in the first part we also already discussed that what do you understand about the equally likely event, complementary event, and everything we have to using. But inside that, now we have to go on to the steps of the complementary. But before that, we discussed earlier in the first part, that is our what do you understand about the event, and those events we have to consider as a sure event, sometimes it considered as an impossible event, everything. So today we are going on to the points that first we have to very much cleared about that if we have to take any event, then we all know that how much outcome of that, possible outcome of that, and what is the actual given into the event. If two things we clearly comes from the question, then that is very easy chapters that you include. So today we are going on to the next portion, and today we are starts with the third example. First of all, we are using that this three example number 3, what it suggests. यहाँ पे आपको एक चीज़ बड़े ध्यान से देखना है कि जो भी चीज़ हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं वो अच्छी तरह से पहले क्वेश्चन में ही समझ में आ जानी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कवर हियर इन दिस एग्जाम्पल 3, इफ थ्रो ए डाई, if we throw a die once, then what is the two questions is raised. Here given the two condition in this example number 3. First condition is that in first condition, rather than first condition, we can say that it's one question. What is the probability of getting a number greater than 4. Now first condition or first event, if we throw a die once. अब यहाँ क्वेश्चन ऐसा है कि एक बार यदि हमने कोई एक डाई को थ्रो किया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4. 4 से ज़्यादा आने की चांसेस या 4 से ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. पहला क्वेश्चन एक कंसिडर होता है और दूसरा ये कर लेते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, या ऐसा भी कर सकते हैं कि लेस देन और इक्वल टू 4. दो कंडीशन रख सकते हैं ना. एक कंडीशन ऐसा रख लिया हमने कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, और एक कंडीशन ऐसा भी रख सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4. तो दोनों कंडीशन हम पहले देख लेते हैं. दो कंडीशन के बीच में हमें ये पोर्शन को क्लियर करना है. सो
Second one is what is the probability of getting a number less than or equal to 4. So two condition we have. Two particular event it generated if we throw a die at once. एक ही बार हमें ये डाई थ्रो करना है और थ्रो करने के बाद हमें ये ऑब्जर्व करना है कि यदि थ्रो करने के बाद ग्रेटर देन नंबर इज ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी और लेस देन और इक्वल टू 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी. ये दोनों चीज़ हम बारी बारी से समझने की ट्राई कर रहे हैं. लेट अस सी. सो फर्स्ट वी आर यूजिंग द सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी ऑल नो दैट. अब आपको ऐसा हो कि शायद आप थ्रू द वीडियो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि पहला क्वेश्चन क्या सर ने पूछा था, तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, और हम याद रख सकते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी जितनी आप सम में रखेंगे, इन्वॉल्वमेंट जितना आप सम में रखेंगे, इतना ही आउटकम आपको मिलेगा ऑब्वियसली. So first of all, in this solution, question number 1 is greater than, number is greater than 4. तो डाई की हमें पता है कि डाई के पॉसिबल आउटकम है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं. टोटल आउटकम कितने होते हैं, 6. और 6 में से ग्रेटर देन 4 की बात हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें ऐसे तो ओरली पता चल जाता है, हम मैन्युअली भी देख सकते हैं कि 6 आउटकम में से 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 4 कितने होते हैं, 5 और 6, यानी 2 आउटकम हमें मिल सकते हैं. वैसे ही दूसरी कंडीशन यानी दूसरे सॉल्यूशन में ऐसा था कि लेस देन, नंबर इज लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू 4. लेस देन और इक्वल टू 4 का मतलब ऐसा होता है कि 4 तक जाना है. ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 4 से लेस मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम, हमें पता है कि टोटल डाई के 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6. सो 4 लेस देन और इक्वल टू 4 का मतलब होता है 1 2 3 और 4 से ज़्यादा नहीं. सो सिमिलर वे वी आर यूजिंग द फर्स्ट ग्रेटर देन 4. सो फर्स्ट सॉल्यूशन हियर दैट हाउ कैन वी राइट. ये सभी ऐसा है कि हमें पूरे प्रोबेबिलिटी में सम तो ऐसे ही पता चल जाता है, बट हाउ कैन वी राइट इन डिस्क्रिप्टिव मैनर. ये जो चीज़ है वो सिखाने के लिए ही मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ एवरीवन हैज़ टू ट्राइड वॉट एवर आई रिटन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपको सॉल्यूशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे. आंसर तो आप वैसे ही ओरली तो आंसर आप दे सकते हैं, और हमें एग्ज़ाम में ओरल एग्ज़ाम हमारा नहीं होता, वो आपको पता है. हमारा एग्ज़ाम जो भी होता है वो रिटन एग्ज़ाम होता है. सो वॉट एवर वी राइट दैट शुड बी वेरी इन द प्रॉपर मैनर. अदरवाइज what will happen, whatever you write, it doesn't matter that what you want to explain with the help of this question. तो क्वेश्चन के उपरांत आप इसका आंसर ऐसे नहीं दे सकते हो, आप अच्छी तरह से अपनी साइड को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव लाइन आप नहीं लिख सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी में हो सकता है कि आपके मार्क्स कट हो. हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि आप सभी के मार्क्स से वो कट हो, बराबर है ना. तो सपोज हाउ कैन वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. फर्स्ट वी हैव टू राइट दिस सेंटेंस दैट हियर लेट ई, वी हैव टू डिफाइन फर्स्ट गिवन द इवेंट नेम. तो यहाँ पे हमने इवेंट का नाम ई दे दिया है. आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने जो भी इवेंट चूज़ की है उसके रिलेटेड आपने अल्फ़ाबेट जो भी रखा है वही अल्फ़ाबेट आपके इक्वेशन में आना चाहिए. ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए. यदि ये भूल गए तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो सकता है. सो बी केयरफुल अबाउट इट. हियर लेट ई बी द इवेंट गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4. हमें पहले क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि
ग्रेटर देन 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी को हम एक इवेंट मान लेते हैं और वही इवेंट को हम ई से डिफाइन करते हैं. ओके. सेकेंड वन, वी आर यूजिंग दैट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. हमें पता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ग्रेटर देन 4 में कितना होता है, वो भी पता है. ये भी हमें पता लगना चाहिए और समझ आ जानी चाहिए कि पॉसिबल आउटकम, हम पहले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि पॉसिबल आउटकम का मतलब ये डाई है उसमें पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6 है. 6 है ना. कौन से है अभी आपको पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 पूरा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है. तो पहले हमें क्या लिखा, first we define that EB event getting a number is greater than 4. Number of possible outcome, that is 6. Now, second thing, number of outcomes favorable to event E. Event E में कितने फेवरेबल होंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन इवेंट क्या है, नंबर इज ग्रेटर देन 4. ग्रेटर देन 4 ऊपर की लाइन पे देखो, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम में आप 4 से ज़्यादा वाले नंबर कितने दिख रहे हैं आपको, 5 and 6 ओनली. दैट्स वाई वी डायरेक्टली राइट दैट नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई इज इक्वल टू 5 and 6. 5 and 6 यानी 4 से ज़्यादा 2 है, इसीलिए हमारे नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ई कितने हुए, 2 हुए. 5 and 6 हम लिख सकते हैं, वो रिजल्ट है. और दोनों का कैलकुलेशन या काउंट करने से कितना मिलता है, 2 मिलता है. तो हमारे पास 2 चीज़ आ गई जो हमारे इक्वेशन में ज़रूरी है, वो इक्वेशन ही हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें. सो P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 2/6. 2 मतलब नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट E, दैट इज 2. यू कैन ऑल्सो राइट हियर द फुल इक्वेशन. आई एम नॉट राइटिंग ओवर हियर बिकॉज ऑफ दैट इज इनफ वन वी डिस्कस्ड इन द वीडियो नंबर 1. सो we just take it out here. P of E, probability of event is equal to 2/6 is equal to, इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करने से हमें क्या मिलता है, 1/3. 2 मतलब 2 3s are 6, so 1/3, that is also our answer. तो पहला सॉल्यूशन तो हमें मिल गया, गेटिंग ए नंबर इज ग्रेटर देन 4 कितना हुआ, 1/3 हुआ. उसमें आउटकम हमें कितने मिले थे, फेवरेबल 2 है. सिमिलर वे वी आर गोइंग ऑन दैट. ये चीज़ आपको याद रखनी है बिकॉज ऑफ एट अ कंक्लूजन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड समथिंग मोर. अब दूसरा क्वेश्चन दैट इज डिपिक्टेड इनटू द सॉल्यूशन 2. दिस सॉल्यूशन नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वी हैव टू यूजिंग हियर इन दिस, पहले याद कर लो कि कौन सा क्वेश्चन था. हियर लेट एफ, अब इवेंट ई तो हमने पहले ही एज्यूम कर लिया है, तो हम दूसरी इवेंट यहाँ पे एज्यूम करेंगे, वो दैट इज एफ. लेट अस स्टार्ट्स विद द एफ इवेंट, दैट इज अ इवेंट गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब 4 से ज़्यादा. अब यहाँ पे एक मिस्टेक्स मैं कंसिडर कर लूँ, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 को हम कंसिडर करें तो यहाँ पे कितना आता है, 3. बट एक्चुअल में यहाँ पे क्या होना चाहिए, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन की जगह पे क्या लिखना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 4. ओके, सो रीराइट इट, गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4. यहाँ पे ये भी कर सकते हो और ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 वो भी आप होमवर्क में कर सकते हो. बट यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड देन वी आर गोइंग फॉर द लेस देन और इक्वल टू 4. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना, 6. वो तो एज इट इज़ जैसे पहले क्वेश्चन में हमने लिखा था कि एक डाई में कितने पॉसिबल आउटकम होते हैं, वो तो 6 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. देन नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, ये इवेंट के लिए कितना है, 1 2 3 एंड 4. क्योंकि यहाँ पे हम कौन सी कंडीशन यूज़ करें, नॉट अ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 बट वी हैव टू यूजिंग लेस देन और इक्वल टू 4. 4 से कम, लेस देन और इक्वल टू 4. 4 तो इंक्लूड करना ही है, बट 4 से कम वाले आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 में 4 और 4 से कम कितना है, 1 2 3 एंड 4. सो वी हैव गेटिंग
4 number of outcome favorable to event F, that is 1, 2, 3 and 4. So let us, we put into the equation P of F. Here also we rewrite here not P of E, but here given you have to write that P of F. P of F is equal to 4 by 6. 4 by 6, that is the number of outcome favorable to event F, and divide with the number of possible outcome. Possible outcome हमारे कितने हैं? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So further simplified it, we get 2 by 3. That is our answer. So these are the two solution, and both solution you have to comparatively keep in your mind, because we have to go into the conclusion. Now just we are check it. First of all, what is the conclusion after using this both of the example? ये दोनों example से हमें क्या conclusion लेना चाहिए, या हमें क्या conclusion मिलने वाला है? आप याद कर लो तो पहले, इससे पहले पार्ट 1 के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि एलिमेंट्री इवेंट होती है, उसकी जो भी आउटकम होती है वो कितना होता है? सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स कितनी होगी? 1 होगी. मतलब उसके आउटकम का टोटल जो होता है वो 1 ही होगा. बट यहाँ पे आपने देखा दोनों एग्जाम्पल में आउटकम 1 से ज़्यादा है. पहले एग्जाम्पल में आप देखो तो उसका आउटकम कितना था? 2 हुआ. इवेंट ई में 2 हुआ, इवेंट एफ में कितना हुआ? तो ये जो चीज़ है वो आउटकम 1 से ज़्यादा की बात हो रही. तो ये कंक्लूज़न हमें यहाँ पे देखना है, बड़े शांति से देखना, क्योंकि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन वी से दैट इवेंट ई एंड event F is the example of elementary event. ऐसा कह सकते हैं हम कि इवेंट जो भी हमने 2 एग्जाम्पल देखे, वो दोनों एग्जाम्पल with the help of this example can we say that event E and event F is the example of elementary event. तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? गैस क्या आंसर होना चाहिए? आप अपनी तरह से थोड़ा बहुत सोचो तो आपके माइंड में अभी ऐसा आ रहा होगा कि सर ये जो बात आप कह रहे हो शायद हमें समझ में तो आ जाती है, बट इसका आंसर हमें यस में देना है या नो में देना है या एक वर्ड में देना है या कोई नंबर में देना है. तो ये चीज़ आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन करते होंगे, और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा ना होए, इसीलिए मैं आपको बता दूँ कि आप सीधा सा कंपेयर करो. तो पहले 2 एग्जाम्पल आपने देखे थे और आज का वीडियो हमने तीसरे एग्जाम्पल से स्टार्ट किया. तो दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि इसका एलिमेंट्री इवेंट से डायरेक्ट कनेक्शन था बिकॉज ऑफ इट गेटिंग ओनली 1 आउटकम. वो दोनों एग्जाम्पल के कितने आउटकम थे? 1 ही थे. और अभी जो हमने इस एग्जाम्पल देखा उसमें इवेंट ई और एफ में देखा तो आउटकम 1 से ज़्यादा है. तो ऑब्वियसली ये पूरा क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या होता है? नो ही होगा. ऑब्वियसली नो. वाई? बिकॉज ऑफ इवेंट ई हैज़ 2 आउटकम. कितने आउटकम है? 2. एंड इवेंट एफ हैज़ 4 आउटकम. समझ में आ गया ना कि एग्जाम्पल 3 में आपने देखा तो इवेंट ई में आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो कि एक्चुअल में इवेंट ई के कितने आउटकम थे? 2 ही आउटकम थे, 5 और 6. तो कितना आउटकम है? 2. और इवेंट एफ के 4 आउटकम है. क्यों? बिकॉज ऑफ 1, 2, 3 एंड 4. 4 आउटकम मिले और इवेंट ई के 2 आउटकम मिले. तो इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस एग्जाम्पल इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्री इवेंट. ओके, सो इट इज अ वेरी इजी कंक्लूजन ओवर हियर. Now just focused on the another points, and that conclusion starts with that. From example 1 we note that. पहले एग्जाम्पल में हमने क्या नोट किया था? आप वीडियो नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था. आप फिर से वो एग्जाम्पल नहीं है तो आप अपने वीडियो फिर से देख सकते हो और फिर से उसमें से नोट डाउन कर सकते हो. तो एग्जाम्पल 1 वी नोट दैट. क्या नोट किया था कि P ऑफ E प्लस P ऑफ F, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F
दोनों का सम जो होता था वो एक ही होता था। अब देखो, हेड एंड टेल की मैं बात कर रहा था पहले एग्जाम्पल में, जिसमें हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1.5 हुई थी और टेल की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हुई थी, 1.5 ही हुई थी। 1.5 प्लस 1.5, इसका दोनों का सम कितना होता है, 1 ही होता है। तो आ गया। तो ये एग्जाम्पल है वो एलिमेंट्री इवेंट कहलाता था। अब एग्जाम्पल 3 की बात कर रहे हैं। फ्रॉम एग्जाम्पल 3 वी ऑल्सो गेट P of E plus P of F, यानी probability E plus probability of F is equal to 1/3 plus 2/3। यानी हमारे पास जो भी आंसर आता है वो कैसा आंसर आया, आप अभी रिसेंटली ही आप रिवाइंड करके आप देख सकते हैं कि probability of इवेंट E कितना आया था, आंसर 1/3 आया था, और probability of F का आंसर आया 2/3। तो दोनों चीज़ हमारे सामने आई, दोनों का आप सिंप्लीफिकेशन करो तो 1/3 प्लस 2/3, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, और नीचे तो 3 है ही, 3/3 यानी 3 कट हो जाता है, कितना रहता है 1 रहता है। तो हमारा आंसर वहाँ पे भी 1 ही आया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका सम जो है, इसका आंसर 1 आता है, बट कंपेयर टू फर्स्ट एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल 3 बोथ आर द डिफरेंट। That's why we put 1 by 1 in the first position in 1 and 2. Equation number 1 and 2 above is F not the same as not E। मतलब इवेंट F है वो E नहीं है, इवेंट E नहीं है, वो तो समझ में आता है ना। देखो पहले एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट एंड सेकंड की दोनों की बात हम कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड की दोनों की बात यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो तो फर्स्ट में P ऑफ E एंड नीचे P ऑफ E, दोनों देखो तो 1/2 1/3 यानी नॉट सेम। P ऑफ E इज नॉट सेम एज P ऑफ F, F से तो वो कंसर्न है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों चीज़ अलग अलग है। तो हम ऑब्वियसली ऐसा कह सकते हैं कि इन 1 and 2 इक्वेशन F नॉट द सेम इज नॉट E, मतलब इवेंट E है वो F के इक्वल नहीं है या सेम नहीं। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट नॉट E is also be denoted by बार E। E के ऊपर एक लाइन होती है, E के ऊपर क्या होगी, एक लाइन होगी E, जिसको हम E बार बोलते हैं। E बार का मतलब होता है नॉट E, समझ में आ गया। तो नॉट E is denoted with बार E and P of E is equal to, सपोज हम ऐसा बोले कि P of नॉट E प्लस P ऑफ E इज इक्वल टू, दोनों का सम करने से प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 ही होगी। तो हम ऐसा सिंपल सा इक्वेशन ऐसा यूज करेंगे, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E। ये इक्वेशन है वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, बिकॉज दिस इज अ इवेंट E रिप्रेजेंटिंग नोट E इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट E। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से याद रह जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये पूरी चीज़ है वो 2 बार उसको स्टडी करो, समझने की ट्राई करो। वो इक्वेशन है वो उसको 2 बार लिखो, टेक्स्ट बुक के साथ भी कंपेयर करो, जितना हो सके उसको समझने की ट्राई करो कि वाई इट इज़ इवेंट E इज़ नॉट कंसिडर एज ए E, नॉट E इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग बाय E डैश, E डैश से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और P ऑफ E डैश का इक्वेशन ऑलवेज 1 माइनस P ऑफ प्रोबेबिलिटी E होता है। तो ये चीज़ अच्छी तरह से समझने के लिए पूरे यहाँ पे जो कंटेंट दिख रही है आपको, वो अच्छी तरह से अपनी बुक में 2 times यू हैव टू राइट एंड अगेन यू लर्न, अगेन you have to write, and you also read carefully, and whatever the question raised during reading of these things, you can also be asked me directly into the WhatsApp group. Okay,
So just move on to the next point, that is considered as a first point. Now we are concerned that what is the probability of getting a number 8 in a single throw of a die. अब यहाँ पे एक दो कंडीशन के साथ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप सीधे से समझ में आ जाए कि एक डाई है, डाई हमारे पास एक पासा है, वो पासा को सिंगल टाइम थ्रो करने से उसके ऊपर 8 आने की प्रोबेबिलिटी 8। अब ये तो हो ही नहीं सकता ना, 8 कभी होता है नहीं, क्योंकि हम जब से सीखे हैं कि डाई में 6 नंबर के आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसके ऊपर कितने नंबर होते हैं, 6 तक ही होते हैं। अब 8 की बात आ गई तो 8 तो ऑब्वियसली उसमें होगा ही नहीं। तो एक कंडीशन आपको एक केस में यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। तो ऑब्वियसली ज़ीरो ही होगा ना, क्योंकि आप देखो तो इसके इक्वेशन में हम रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 दैट इज P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 8 होने के पॉसिबल आउटकम है ही नहीं, मतलब हम न्यूमरेटर में 0 ही रखेंगे। न्यूमरेटर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर कितने हैं, 6 है, क्योंकि हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6 है। तो 0 डिवाइड बाई 6 तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा ना। तो एक केस आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है। तो आंसर ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू गेटिंग नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो तो कभी मिलेगा ही नहीं। सो दैट्स वाई वी हैव टू पुट 0 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 0। सेम केस वी आर कंसर्न विथ द सेकंड वन। तो अब हम यहाँ पे सीख ले पहले कि विच थिंग्स इज इम्पोर्टेंट हियर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू ऑकर इज 0, इट इज नॉन एज इम्पॉसिबल इवेंट। अब यहाँ पे एक पता चल गया कि यहाँ पे जो भी ऊपर का एक केस दिया है उसका आंसर सीधा क्या आया, आपका 0 आया। अब ये 0 आने से आपको एक माइंड में होता होगा कि सर ये प्रोबेबिलिटी भी 0 होती है। नो नो नो, प्रोबेबिलिटी इज नॉट 0 हियर, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल ही नहीं है, इसका आंसर ऑलवेज 0 आता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज 0, it is known as impossible event. So you can also write this pure definition regarding the impossible event. Now we concern about the second one. What is the probability of getting a number is less than 7 in a single throw of a die? अब यहाँ तो मैं आंसर दे दिया है और आपको वेरी फास्टली उसके ऊपर जाना और स्लो जाने से अच्छा है कि हम उसको सीधा ही पकड़ लें। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर इज लेस देन 7, 7 से कम, 7 से कम। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कि लेस देन और इक्वल टू 7। यदि ऐसा बोला गया होता तो फिर से 0 आता। इज लेस देन और इक्वल टू 7 बोला होता तो क्या होता, 0 होता। बट लेस देन 7 का मतलब 1 to 6, और 1 to 6 ऑल आर द ऑप्शंस दैट इज अवेलेबल इनटू द वन टाइम थ्रोन ऑन द डाई। तो एक बार उछालने से, पासा को एक बार उछालने से उसके ऊपर आने वाले डिफरेंट टाइप के 6 पॉसिबल आउटकम उसके ऊपर है, और हमें यही बताना है कि 7 से नीचे वाला, यानी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 एंड 6 आउट ऑफ 6 डिवाइड बाई 6, दैट्स वाई हैविंग द 1। मतलब ऐसी कोई भी सेंटेंसेस से हमें पता चल जाता है कि इसका रिजल्ट है, इसकी कोई भी सर्टेनिटी है, वो श्योर इवेंट में कंसीडर्ड होता है। मतलब दिस सेंटेंस हैविंग द रिजल्ट बिकॉज ऑफ 7 से कम वाले 6 है, 6 डिवाइड बाय
नंबर ऑफ कितने होते हैं टोटल 6 होते हैं, तो 6 डिवाइड बाई 6 कितना होता है 1। जिसका भी आंसर 1 आता है इसका मतलब हम उस इवेंट को क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे। श्योर इवेंट का दूसरा भी नाम है सर्टेन इवेंट। तो आइदर इट विल कंसिडर एज अ सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। सो इन दिस पॉइंट्स वी हैव टू यूजिंग टू थिंग्स। Impossible event, that is always we put the value 0, and those having the value of probability is 1, that should be considered the sure event or certain event. So it is very easy. Now just we moved on to the next. From the definition of द प्रोबेबिलिटी, अब हमें यहाँ पे दो चीज़ समझनी है लास्ट में और इस वीडियो के एंड में। आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सब सीखने के बाद कभी कभी हम ये डेफिनेशन सब भूल जाते हैं। क्या कर जाते हैं, डेफिनेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखते नहीं हैं, इसीलिए हम भूल जाते हैं। पर जितना हम लिख के उस डेफिनेशंस को हम बारी बारी से कैलकुलेशन करेंगे, बाद में लिखेंगे, तब हमें ये पूरी डेफिनेशन है वो माइंड में क्लिक हो जाती है। मैथमेटिक्स में और कुछ नहीं है, हम क्या करते हैं, हम सीधे एक्सरसाइज के ऊपर चले जाते हैं। एक्सरसाइज के ऊपर चले गए और बाद में हमें पता चला कि यहाँ पे एक लाइन में आया श्योर इवेंट क्या है, हमें पता नहीं श्योर इवेंट क्या है, बिकॉज ऑफ वी डजंट नो अबाउट द श्योर इवेंट, वी डजंट नो अबाउट द इम्पॉसिबल इवेंट। बट ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना हो सके ये बोल्ड राइटिंग में लिखा गया आपकी टेक्स्ट बुक में, वो सभी चीज़ तो आपको बुक में से लिख ही लेनी है। 110% कंपल्सरी यू हैव टू राइट दिस ऑल द सेंटेंसेस दैट इज पुटेड इनटू द बोल्ड फेसेस इन योर टेक्स्ट बुक, इजंट इट? यदि ये चीज़ आप कर लिया, आपका 80% task is over, because exercise is very easy thing. But पहले आप ये सब टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है, then nothing to do in it, isn't it? So I hope so that everyone has to got it what I am telling in front of you with using this online platform. अभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी कभी कभी स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि सर क्या है, दो वीडियोस आते रहते हैं और ये वीडियोस में सब हम क्या देखें सर, हम तो पूरा ये देखने से आधा देखते हैं, बाद में फॉरवर्ड कर देते हैं या रिवाइंड कर लेते हैं, लास्ट में कोई होमवर्क है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं, बीच में तो कुछ हमने देखा नहीं है। ऐसा कहीं कहीं होता है, बट बी केयरफुल। ईच एंड एवरी सेंटेंसेस वॉट एवर द स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, everything's are very important for you. एक बात तो सही है कि अभी हम फेस टू फेस नहीं मिल रहे हैं, बट मुझे ऐसा फील होता है कि जब भी आप मुझे देख रहे हैं, आप अच्छी तरह से माइंड में सेट हो जाते होंगे कि सर ने जो भी बोला है वो करना ही है। तो मेरी एक बात आप सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान में रख के, भले ही आप स्लो में जाओ, भले आप एक ही कंटेंट में एक ही कॉन्सेप्ट आप कर सको, बट दैट विल बी वेरी कॉन्क्रीट। आफ्टरवर्ड्स वी डजंट मूड ऑन इट, उसके ऊपर हमें बाद में नहीं जाना पड़े, ऐसी आपकी हर रोज़ की स्टडी होनी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सभी लोग घर पे बैठे ऐसे ही करते हैं, और मुझे विश्वास है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे शेयर भी करते हैं। और ये चीज़ लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, पूरा कंक्लूजन, पूरा निचोड़ यदि हमको यहाँ पे लेना है तो ऐसे ले सकते हैं कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, द न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला पार्ट, P ऑफ E इज इक्वल टू ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं। वो क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट E। यदि न्यूमरेटर नहीं बोलना है तो न्यूमरेटर के साथ में जो भी बोलना है और हमें याद रखना है वो ब्रैकेट में लिखा है मैंने। न्यूमरेटर मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट E इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला पार्ट है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। यानी एक चीज़ हमें पता चल जाती है
कि न्यूमरेटर होगा, ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर ही होगा। यानी नीचे वाला है ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का या तो इक्वल होगा या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन ही होगा। ये चीज़ आप प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन से सीख लेना चाहिए। यदि आप कोई भी इक्वेशन करते हो और यदि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा आ गया तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि हमें इससे इस इक्वेशन से पता चल जाता है। और ये इक्वेशन हमारा बेस है। कौन सा इक्वेशन? 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। यानी हमारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच ही होनी चाहिए। 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। यानी 1 से न ज़्यादा होगी और 0 से न कम होगी। मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी 0 से कम और 1 से, यानी 0 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए। ये इक्वेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ न याद रहे तो लास्ट में एक इक्वेशन तो आप याद रख ही सकते हैं, और ये चीज़ आप 2 बार, ये चीज़ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होता है या तो इक्वल होता है। और आप एक बात याद में रख ले कि प्रोबेबिलिटी जो भी आई वो 1 और 0 के बीच में ही आएगी। आप एक ही एग्जांपल ले लो तो अभी एग्जांपल 3 में एक आंसर आया था 1/3। 1/3 को आप सीधा सा सिंपल सा आप कैलकुलेशन करो तो 10/3 यानी 3 3 यानी 0.3 आता है। पहले तो 0.3 आ गया, 0.3 आया मतलब 0 से कम और 1 से भी कम, 0 से ज़्यादा 1 से कम, 0 से ज़्यादा 1 से कम। ये प्रोबेबिलिटी की थीम हमें इस डेफिनेशन से हमेशा याद रखनी है। ये जितना आप याद रख सको दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। Okay, so let us conclude with this video. Next video we will discuss about all the examples related with the playing cards. So don't miss next video. Thank you very much. And one more things, आप एक चीज़ मैंने बोला ना कि आज आप शायद बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, फेस टू फेस मिलने से आपको शायद थोड़ा ऐसा लगता है कि हम करेंगे नहीं करेंगे तो सर को कैसे पता चलेगा। ये चीज़ माइंड में कभी नहीं रखना। हम सभी टीचर्स ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ आपको ऐसे ही ट्रेन करने का पूरा एफर्ट लगाते हैं कि आप घर पे बैठे हुए भी ऐसा महसूस ना कर सके कि हम अकेले हैं, हमारा कोई देखने वाला नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे। हम आपके साथ हैं। आपको जो भी डाउट है आप कभी भी अपने व्हाट्सएप नंबर, गिवन व्हाट्सएप नंबर, स्कूल के नंबर्स थ्रू भी हमको पूछ सकते हैं, मेल थ्रू भी पूछ सकते हो, बिना हेजिटेशन। आप कुछ भी यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका सॉल्यूशन निकालना है, हम ऐसा पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। पूरी टीम ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ की पूरी टीम ऐसा पूरा एफर्ट लगा रही है कि आपको जितना अच्छा और इजी और वेरी स्मूथली आपको मिले, और इतने सरकमटेंसेस में भी ये सारे सरकमटेंसेस जो आपको बाहर नहीं निकलना है, ये सब करना है, घर पे रहना है, फिर भी आपको इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाने का एक जो ट्राई हम अपनी पूरी टीम कर रही है, उसको आप अच्छी तरह से अपना होमवर्क करके अपना रिस्पॉन्स दे के करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। Here also be given that some of the things is putted over here, and you also subscribes with these things with using the share, maximum share of this video, like any given comments, and subscribes our school channel Gyan Manjari Vidyapith. Whatever you have to weigh just to check, आपको पास पूरा समय है, उस समय का पूरा यूटिलाइज करो। थैंक यू वेरी मच।